ایک زمانہ تھا جب تم بڑی پابندی سے میری ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اب میں تم سے اصرار نہیں کرتی، کسی اور ذریعے سے اپنی غذا کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ لیکن آج مورینا کے چہرے کی ملاحت دیکھ کر میری بھوک بھڑک اٹھی ہے، اس کا گداز جسم، اس کے بھرے بھرے گھال۔ میں نے کبھی کسی سیاہ فام عورت کا خون نہیں پیا، سنا ہے کہ ان کے خون میں ایک خاص لذت ہوتی ہے۔ سن رہے ہو جمیل، میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں، آج تم اپنی انکا رانی کی درخواست رد نہ کرنا، میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں نے ایک عرصے بعد انکا کے لب و لہجے میں وہی خوفناک گراہٹ سنی جو پہلے اکثر سنا کرتا تھا۔ مورینا کو وہ ایسی خون خوار بلی کی طرح گھور رہی تھی جو کسی کبوتر کو شکار کرتے وقت ہر خطرے سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ جج کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مسٹر دولت علی، تم نے گزشتہ پیشی پر عدالت سے پولیس افسر مسٹر لوئس آرتھر سے 3 باتیں دریافت کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ عدالت نے تمہیں اس کا موقع دیا، تم 2 باتیں دریافت کر چکے ہو، کوئی آخری بات رہ گئی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ عدالت تمہیں ایک خاص وجہ سے مسٹر آرتھر سے کوئی مزید سوال کرنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتی۔ گویا یہ معزز عدالت اپنے وعدے سے منحرف ہونے کا اعتراف کر رہی ہے۔ میرے لہجے میں طنز تھا۔ تم جو چاہو سوچو، عدالت کسی کے ذہن پر پہرے نہیں بٹھا سکتی، جج نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ ان کا میرے سر پر پہلو بدلنے لگی۔ جیوری کے ممبران ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ مورینا کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر اداسی کے بادل تیرنے لگے۔ آرتھر کی نگاہوں میں امید کی کرن ٹمٹمانے لگی۔ سرکاری وکیل چونک کر جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگی۔ ایک لمحے کو عدالت کے وسیع حال میں موت کا سناٹا طاری رہا۔ پھر جج نے مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں محسوس ہو رہی کہ تمہارے کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ قانون کی روح سے تم اگر چاہو تو اس عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق رکھتے ہو۔ جج نے تھوڑا توقف کیا۔ عدالت میں پھر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ انکا کی وحشت قابل دید تھی۔ جج کی آواز دوبارہ گونجی۔ جیوری کے ممبران کی متفقہ رائے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور قانونی دستاویز کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ عدالت میں مسٹر آرتھر سے تیسری بات دریافت کرنے کا موقع دیے بغیر باعزت طور پر بری کرتی ہے اور مسٹر آرتھر کو پابند کرتی ہے کہ وہ 10 روز کے اندر اندر تحریری وضاحت پیش کرے کہ انہیں تمہارے خلاف غلط کیس بنانے کے جرم میں ملازمت سے معطل کیوں نہ کر دیا جائے۔ یہ عدالت سرکاری وکیل کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں تمہاری رقم فی الفور پولیس سے واپس دلائے۔ تمہیں تفصیلی فیصلے کی نقل 1 ہفتے بعد حاصل کرنے کے مجاز ہوگی۔ جج فیصلہ سنانے کے بعد اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ انکا نے میرے سر پر دھمال شروع کر دی۔ آرتھر کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مورینا کے ہونٹوں پر دوبارہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ جیوری کے دوسرے ممبران جج کے فیصلہ سنانے کے انوکھے انداز پر ہنس کنس کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں آرتھر کو نفرت اور حقارت بھری نظروں سے گھورنے لگا جو سکتے کی کیفیت سے 2-4 تھا۔ سرکاری وکیل نے سفری بیگ اور 99,200 پاؤنڈ کی رقم واپس کرنے میں خاصی عجلت کا مظاہرہ کیا۔ وہ مجھ سے رقم گنوانے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں نے اس کی تیار کردہ رسید پر رقم گنے بغیر بے پرواہی سے دستخط کیے اور سفری بیگ اٹھا کر باہر آ گیا۔ ہوٹل پہنچنے سے پہلے میں نے مشرقی روایت کے پیش نظر 99,001 پاؤنڈ کا بینک ڈرافٹ جین کے نام تیار کرا لیا۔ میں نے وہ بینک ڈرافٹ کے ایک مختصر الوداعی پیغام کے ساتھ ایئرپورٹ سے فارم ہاؤس کے پتے پر بھیجنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انکا نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے مورینا کے سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں مستغرق ہے۔ میں نے اسے ٹٹولنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ شام کو میں نے اس ہوٹل کا حساب
चुकता कर दिया। उनसे मैंने यही कहा कि मैं अपने एक मकामी दोस्त के घर मुंतकिल हो रहा हूँ। ये ताकीद भी कर दी कि मेरे सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखें। वो जिम से खौफजदा थे। मुझे यकीन था कि मेरी हदायत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। होटल से निकलकर मैंने एक कैब ड्राइवर को अंगेज किया और लंदन की सड़कों के बेमैनी चक्कर लगाने लगा। जीन से जुदाई का ख्याल मुझे बुरी तरह डस रहा था। मैं किसी ज़माने में अय्याशी के लिए मैं नोशी करता था। उस रोज़ मैंने एक बार में रुककर गमे गलत करने की खातिर 3 पैग हल्क में उंडेल लिए। मुझे बार में जाता देखकर कैब ड्राइवर ने हिसाब करने की दरख्वास्त की। आमतौर से लंदन में ऐसा नहीं होता, लेकिन ड्राइवर ने अपनी एक मजबूरी और वक़्त की तंगी का इज़हार किया, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। मैंने काफ़ी अरसे बाद पी, इसलिए मेरे कदम थोड़े थोड़े बहकने लगे, लेकिन मेरे होशो हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। मैं फुटपाथ पर खड़ा किसी दूसरी कैब का इंतज़ार कर रहा था जब एक मैरून रंग की लंबी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। ड्राइवर सीट पर मोरीना को देखकर मुझे खुशगवार हैरत से दो चार होना पड़ा। आप मिस्टर दौलत अली, उसने बड़ी बेतकल्फी का इजहार किया। कहाँ जाना है? जहाँ आप ले जाना चाहें, मैं रवानी में कह गया। शायद नशे का असर था जिसने मोरीना को देखकर मुझे बेबाक बना दिया। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना, हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसकी दावत रद्द नहीं की। गाड़ी दोबारा हरकत में आ गई तो मैंने डैशबोर्ड की घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, मैं तफरीह के इरादे से निकला था, लेकिन अतलान अर्ज है कि मैं आज रात 2 बजे की फ़्लाइट से वापस हिंदुस्तान जा रहा हूँ। मुझे 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना है। आपका एक कर्ज चुकता करना था, इसलिए साथ बैठ गया। डोंट वरी, मैं आपको वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचा दूंगी, उसने मुतरन्नम आवाज में जवाब दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, कर्ज वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने ज्यूरी की एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर मेंबर होने के बावजूद जिस तरह मेरे हक में राय दी, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज समझता हूँ। हैरत अंगेज, उसने एक खास अदा से शाने उचकाकर दरियाफत किया, आपको कैसे इल्म हुआ कि मैंने आपको सपोर्ट किया था? अगर मैं साफ गोई से काम लूं तो आप खफा नहीं होंगी। मैंने उसके सरापाए का जायजा लिया। वो जीगती जागती क्यामत नजर आ रही थी। इल्मे नजूम, उसने मेरी तरफ कातलाना नजरों से देखा। जी नहीं, आपकी मखमूर और हसीन आंखें जो दिल का भेद नहीं छुपाती। मैंने शायराना अंदाज इख्तियार किया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? मोरीना का लहजा महनी खेज था। वो इतनी जल्दी मुझसे बेतकल्लफ हो जाएगी, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने जसारत से काम लेकर उसके शानों पर हाथ रख दिया। उसने कोई एतराज़ नहीं किया। हमारे दरमियान से रस्मी तकल्लुफ़ की आर्जी दीवार सरकने लगी। बेतकल्फाना गुफ्तगू का दौर शुरू हुआ तो मेरे जिस्म पर चूंटियाँ रेंगने लगी। मेरे हाथ की शोखियाँ हदूद से तजावज़ करने लगीं। कुछ शराब का असर था, कुछ मोरीना के महकते गुदाज जिस्म का सहर अंगेज नशा। ज़बत के बंधन टूटने लगे। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ देर बाद मोरीना ने गाड़ी साहली इलाके में एक अलग थलग बने खूबसूरत हट के सामने रोकी। हम नीचे उतर आए। सर्द हवा के झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया। वो बेदकल्फी से मेरा हाथ थाम के हट के अंदर ले गई, जिसकी नफासत और कीमती अशिया काबिले दीद थी। लेकिन मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा कीमती शय मोरीना थी, जो कदम कदम पर मेरे जनून की हौसला अफजाई कर रही थी, मुझसे बढ़ चढ़ कर बेबाकी का मुजाहरा कर रही थी। मैंने उसके गुदाज वजूद को बाहों में समेटे बिस्तर पर दराज हुआ तो अचानक मुझे इनका का ख्याल आ गया। मैंने उसे देखने की कोशिश की, वो सर पर मौजूद थी। मैं मुस्कुरा दिया और समझ गया कि उसने अदालत में मोरीना के बारे में कही हुई अपनी बात मनवाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। मोरीना का शराब खाने के सामने गाड़ी रोककर मेरे साथ बेतकल्फी से पेश आना, मुझे लिफ्ट देना, साहली इलाके की उस पुरसकून हट तक लाना, मेरी शोखियों को बर्दाश्त करना, सराहना, ये सब यूं ही तो नहीं हो सकता था। उसकी पुश्त पर इनका रानी का हाथ साफ नजर आ रहा था। वो मोरीना के सर को अपना मोर्चा
बना चुकी थी। रवि मेरे हक में चीन लिखता था। मैं वक्त गुजारी की खातिर होटल से निकला था। गमे गलत करने की खातिर मैंने शराब का सहारा लिया। मुझे सुकून की तलाश थी। जीन का तस्वर मुझे बेचैन कर रहा था। मोरीना ने बाहें फैलाकर मेरे नफ्स को उकसाया। मैं सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में सिमट गया। उसकी एक एक हरकत हेजान अंगेज थी। मुझे वक्त का एहसास नहीं रहा। मोरीना जैसी स्याफाम हसीना उसके जिस्मानी नशीबो फराज और पुरस्कून माहौल मयस्सर हो तो वक्त का ध्यान किस काम वक्त को रह सकता है। मैं भी उसके वजूद में तहलील होकर हर फिक्र से बेनियाज हो गया। वो सरकश मौज की तरह ठाठे मार रही थी। मैं माहर पैराक की तरह हाथ पांव चलाता रहा। साहल पर पहुंचकर दोनों नढाल हो गए। उसकी सांसें बिखरने लगीं। मेरी तूफानी शिद्दतें भी नढाल हो गईं। दौलत अली, उसने मेरी कुशादा सीने पर रखकर बड़ी बेहयाई से एतराफ किया, तुम गंदमी रंगम के लोग हमारे साथियों से ज्यादा वहशी होते हो। किसी जालम दरिंदे की मानद अपने शिकार को बंभोर डालने की खूबू तुम्हारी फितरत में रची बसी होती है। मुझे तुम लोगों का ये अंदाज अच्छा लगता है। जहां खुलकर बात करने की इजाजत ना हो वहां गुफ्तगू का मजा नहीं आता। यू आर रियली वंडरफुल। मोरीना सारी रात गुजारने के मूड में थी। इनका ने मेरे सर पर आकर कहा, तुमने कहा था कि 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। देर मत करो। मेरी खातिर गोल में से फल काटने वाला चाकू उठाकर मोरीना के उबलते हुए सीने में घोंप कर निकल जाओ। बाहर गाड़ी मौजूद है। किसी बात की फिक्र ना करना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। मैंने सर पर निगाह डाली। इनका के चेहरे पर आदम खुरोन दरिंदों जैसी तमाम अलामतें मौजूद थीं। मेरे लिए ये कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। मैंने जल्दी से उठकर इनका की फरमाइश की तकमील की। मोरीना की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके सीने से गाढ़ा गाढ़ा खून भलभलाने लगा। कमरे में सड़क सड़क की आवाजें उभरने लगीं। मैं समझ गया कि इनका ने खून पीने का अमल शुरू कर दिया है। मेरा नशा हरन हो गया। मैंने बरक रफ्तारी से लिबास पहना। बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट की। हट से होटल और होटल से सैयद की लाठी और एक सफरी बैग उठाकर एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते 11:30 बज गए। मैंने गाड़ी पार्किंग लॉट में छोड़ने से पहले तमाम मुमकिन फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। मुझे ज्यादा फिक्र भी नहीं थी। लंदन से मेरा ताल्लुक खत्म होने में ज्यादा देर नहीं रह गई थी। बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के बाद मैंने बैंक ड्राफ्ट और जीन के नाम मुख्तसर पैगाम वाले लिफाफे को सपुर्द डाक किया। फिजाई कंपनी की खातून की मुतरन्नम आवाज बार बार माइक पर उबर रही थी। वो मुसाफिरों से जहाज में बैठने की दरख्वास्त कर रही थी। 2 बजने में 5 मिनट बाकी रह गए तो मैंने जीन के नंबर डायल किए। 6-7 घंटियों के बाद दूसरी तरफ से जीन की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। जीन, मैंने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा, मैं तुम्हें शादी की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। विलियम के साथ खुश रहने की कोशिश करना। दौलत अली, तुमने इस वक्त रात के 2 बजे मुझे शादी की मुबारकबाद देने की खातिर सोते से जगाया है। जीन ने उलझे हुए लहजे में कहा। फिर परेशान लहजे में बोली, तुम खैरियत से तो हो? कहाँ से फोन कर रहे हो? मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, मैंने रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया। आधे घंटे बाद मेरा जहाज लंदन की सरजमीन छोड़कर फिजा में बुलंद हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। जिंदगी रही तो शायद फिर किसी मोड़ पर तुमसे। दौलत अली, जीन ने तड़प कर बेचैनी का इजहार किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे मिलने की जरूरत भी महसूस नहीं की और मेरी शादी। खुदा हाफिज जीन, मैंने रसूल हुक पर रख दिया और गेट नंबर 18 की सिमत तेज तेज कदम उठाने लगा। मेरे दिल की क्या कैफियत थी उसका सही अंदाजा कौन लगा सकता था। ब्रिटिश एयरलाइन के दो पैकर तैयारे ने जमीन से फिजा की बुलंदियों की तरफ परवाज की तो जीन से मेरा तमाम रिश्ता जैसे कच्चे धागे की मानद टूट गया। उसकी आवाज मेरी कानों में गूंज रही थी। दौलत अली, मेरी शादी पर तुम्हें कोई ऐसा आइटम पेश करना होगा जो सारे मेहमानों को हैरत ज़दा कर दे। मैं उसकी शादी पर लंदन में होता तो उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करता। ऐसे हंगामे करता कि सारा इंग्लिस्तान शशदर रह जाता।
وہ بھی کیا یاد کرتے کہ کسی ہندوستانی سے پالا پڑا ہے، لیکن میں نے خاموشی سے واپسی کا پروگرام مرتب کر لیا۔ اب وہاں رکنے سے فائدہ بھی کیا تھا؟ میں جین کو کسی اور کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے زندگی کے آخری لمحوں میں مجھے اپنی بھرپور جوانی کی بے ساکھی کا سہارا دیا۔ اس کے احسان بے شمار تھے۔ میں نے اسے ولیم کے محفوظ ہاتھ میں سونپ کر کچھ حساب بے باک کر دیا، لیکن اس کے قرب کے حسین مہکتے گنگناتے لمحوں کو اس سے قریب رہ کر یکسر نظر انداز کر دینا میرے اختیار میں نہیں تھا، تو میں نے جین ہی سے نہیں، لندن سے بھی منہ موڑ لیا۔ جین کی یاد آئی تو میں نے نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن کی اسکرین پر گزرے دنوں کی تلخ و شیریں یادیں رینگنے لگیں۔ جین سے دور رہنے کی خاطر میں نے ماریا کو اپنی عارضی دل بستگی کا ذریعہ بنا لیا۔ جین کے فارم ہاؤس سے منتقل ہو کر ہوٹل کی رہائش اختیار کی، جہاں میلبا جیسی معصوم مگر تجربہ کار حسینہ میرا دل بہلاتی رہی۔ مجھے سیاف مورینا کی یاد آئی، جسے دیکھ کر انکا کی بھی دیوانی ہو گئی۔ وہ لندن میں میرا آخری شکار تھی۔ اسے ساحلی علاقے کی ہٹ میں چھوڑ کر میں ایئرپورٹ چلا آیا۔ انکا بھی ابھی تک اس کے کھولتے خون کی سرد پڑتی حرارتوں کو اپنے وجود میں منتقل کرنے میں مصروف ہوگی۔ لندن سے میری واپسی کی اطلاع سن کر جین دیوانی ہو گئی۔ اس نے بہت کچھ سوچا ہوگا، مختلف امکانات اس کے ذہن میں کل بلائے ہوں گے۔ اس کی رات کی نیند خراب ہو گئی ہوگی۔ شاید اس نے سارا کو فون کیا ہو، جم کو ٹٹولا ہو، جم سے میری اچانک واپسی کی بات کی ہو، پھر تھک ہار کر اپنے دل کی دھڑکنوں میں گم ہو گئی ہو۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ میرے برابر کی نشست خالی تھی۔ میں نے جین کو ذہن سے نکال کر ہندوستان کے بارے میں غور کرنا شروع کیا۔ پریتم لال نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ جو کام کلدیپ ادھورے چھوڑ گئی وہ مجھے نمٹانے ہوں گے۔ اسی نے بتایا تھا کہ پنڈتوں اور پجاریوں کی ٹولی پھر میرے خلاف محاذ آرا ہو رہی ہے۔ بدری نارائن کے سر پھرے چیلوں نے اس کی چتا کی راکھ کو ایک لٹیا میں محفوظ کر لیا تھا، دریائے برد نہیں کیا تھا۔ سر جوڑ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ میرے کریا کرم کے بعد ہی وہ اپنے گرو کی راکھ کو تبت کی کسی چوٹی پر بکھیریں گے۔ امر لال کے اکلوتے بیٹے چندرا نے بھی میرے خلاف کچھ ٹھان رکھی تھی۔ اس نے اپنے خون سے ماتھے پر تلک لگا کر کالی کے قدموں میں بیٹھ کر قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنے باپ کا انتقام چکتا نہیں کرے گا، کسی عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پریتم لال کی اطلاع کے مطابق وہ ودیا کے چل کی کسی پہاڑی گپا میں آسن جمائے بیٹھا مہان شکتی حاصل کرنے کی خاطر جاپ میں مگن تھا۔ انکا نے مجھے پنڈل نول کشور کے بارے میں بتایا کہ ہر دوار میں بیٹھا پجاریوں کی فوج تیار کر رہا تھا۔ کالی کے مندر کا بڑا پروہت ہونے کی وجہ سے اس کی رسائی دور دور تک تھی۔ ہزاروں ناعاقبت اندیش پجاری اس کے اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار بیٹھے تھے۔ نور کشور میرے بدترین دشمن بدری نارائن کا ہم نوا تھا۔ پہلے وہ بزدلوں کی طرح دور بیٹھا بدری نارائن کے بھیانک انجام پر سر پیٹتا رہا۔ اب اسے کالی کی خوشنودی حاصل ہوئی تو مجھے ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ لندن میں سکون کی زندگی گزارنے کے بعد مجھے ہندوستان جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کلدیپ نے امر لال کو جس طرح کتوں کی موت مارا تھا، اس کا ایک ایک منظر میرے ذہن، میرے دل و دماغ پر نقش تھا۔ کلدیپ نے پہل نہیں کی تھی۔ امر لال کو کلدیپ کے آشیرواد نے گبنڈی بنا دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کلدیپ نے میری خاطر اپنی زندگی بھیج دینے کا وعدہ کر کے کالی کا اعتماد حاصل کیا ہوگا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے ترکش کے سارے تیر آزماتا رہا۔ کلدیپ اذیتیں برداشت کرتی رہی، چٹان کی طرح کھڑی رہی۔ کسی موقع پر اس کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر جواب میں کلدیپ نے پلٹ کر وار کیا تو امر لال جان بچانے کی خاطر اس پرانے مندر کی طرف بھاگا جہاں مالا کو قید کیا گیا تھا۔ کلدیپ نے اس کی تمنا نہیں پوری ہونے دی۔ امر لال کی موت بڑی عبرتناک تھی۔
बद्री नारायण और अमरलाल की मौत के बाद खेल तमाशे खत्म हो गए। कुलदीप की मौत के बाद मैं तन्हा रह गया। मैं अपने ख्यालात में मुस्तगरक था जब एक नस्वानी आवाज ने मुझे चौंका दिया। मिस्टर, ये लाठी सीट से हटा लीजिए प्लीज। मैंने आंखें खोलकर देखा तो देखता ही रह गया। वो एक हसीन दोशेज़ा थी। अंदर के उखाड़े की कोई अप्सरा थी, परी थी या हूर थी, जो बड़ी तमक्कुनत से खड़ी सैयद मजदूब की उस लाठी की तरफ इशारा कर रही थी जो मैंने खाली सीट से टिका दी थी। मुझे तअज्जुब हुआ कि जहाज को एयरपोर्ट से रवाना हुए आधा घंटा गुजर चुका था। वो अचानक कहां से नमूदार हो गई। ये मेरी सीट है, उसने मेरी हैरत से लुत्फ अंदोज होते हुए बड़े पुरवकार लहजे में कहा। मैं जहाज में सवार होने के बाद एयर होस्टेस की इजाज़त से अपने एक वाकफ कार के साथ कुछ देर के लिए फर्स्ट क्लास में चली गई थी, जहां मैं कुछ और नशस्तें भी खाली हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बेतकल्फी से बात जारी रखी। अगर आप कहें तो मैं किसी दूसरी खाली सीट पर। जी नहीं, मैंने जल्दी से सैयद मजदूब की लाठी अपनी तरफ कर ली। उसके महकते वजूद से दूरी इख्तियार करना कुफराने नेमत से कम नहीं था। कुर्बो जवार में बैठे हुए बेशतर मुसाफिर उसे हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। वो सिर्फ देखे जाने के नहीं, चाहे जाने के काबिल थी। मेरा बस चलता तो उसे अपनी पलकों पर बिठा लेता, दिल की गहराइयों में छुपा लेता। वो अपने क़यामत जिस्म को हल्का सा बल देकर खाली निशस्त पर बैठी तो उसके बदन की खुशबू मुझे मजहूर कर गई। मेरी नज़रें उसके सरापे में गुम हो गईं। वो दराज कद और सीमी बदन थी। कुदरत ने उसे बड़ी फुर्सत में तख्लीक किया होगा। उसके जिस्म के एक एक नशीबो फराज अपनी मिसाल आप थे। मेरी नज़रें बहकने लगीं। उसकी बिखरी हुई दराज जुल्फें शानों पर नागनों की तरह बल खा रही थी। उसके शबनमी आंखें, उसके चेहरे पर खेलती हुई मदम मासूम मुस्कुराहट, उसके होंठों का गुदाज, उसके गुलाबी गालों का निखार, सुराहीदार गर्दन, सीने का जेरो बम, लिबास की सरसराहट, भीनी भीनी खुशबू जो ज़हन को ख्वाबों की दुनिया की सैर करा दे, सब कुछ काबिले दीद था। वो कुदरत की तख्लीक का एक हसीन व जमील शाहकार थी, मुतहरके मुजस्समा थी। मैं उसकी हुस्न की रानाइयों में गर्क हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत हसीन चेहरे देखे थे। मुझे उनकी कुर्ब की लज्जों से सरशार होने का भी शर्फ हासिल हुआ था। वो मेरी आगोश में खुली किताब की तरह पड़े रहते थे। मैं उन्हें वर्क वर्क पढ़ता रहा, लेकिन वो अब इन सब से मुनफरिद थी। मेरी हुस्न शनास निगाहों के लिए एक नादर अजाफा थी। मुझे उसके हम सफर होने पर फख्र महसूस हुआ। दूसरों की निगाहों में रकाबत के जज्बे मचलने लगे। आप तन्हा हैं? मैंने मुहज्जब लहजे में दरियाफत किया। जी नहीं, उसके शीरी लबों को जुम्बश हुई। शोखी से बोली, आप भी तो साथ हैं। मैं लाजवाब हो गया। सैकड़ों मुसाफिरों से भरे जहाज में उसकी बेबाकी का क्या जवाब देता। आपका शुभ नाम? उसने मुझे कसमसाता देखकर मुतरन्नम लहजे में दरियाफत किया। जमील अहमद खान, मैंने धड़कते दिल से जवाब दिया। उसके माथे की बिंदिया देखकर मुझे उसके हिंदू होने का शुबा हुआ था। उसने मेरा शुभ नाम पूछकर मेरे शुबे की तस्दीक कर दी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसके लहजे में तासफ उतर आया। मेरा ख्याल है कि आप किसी विचार में गुम थे जब मैंने। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने संभल कर जवाब दिया। यूं ही लंदन के कुछ साथियों को याद कर रहा था। आप लंदन किस लिए आए थे? सैरो तफरीह की खातिर। कोई और आपके साथ नहीं आया? नहीं, मैंने जानबूझकर मुख्तसर जवाब दिया। ओह, तो उसने मैनी खेत अंदाज में मुस्कुराकर कहा, फिर तो आप बड़ा अकेला महसूस करते होंगे। करता था, अब नहीं। अब क्या हो गया? वो मेरी बात का मफहूम नहीं समझ सकी। अब आप जो साथ हैं, मैंने जिसारत से काम लिया। उसी का जुमला थोड़ी सी तरमीम के साथ वापस लौटा दिया। खुशी हुई आपसे मिलकर, वो मुस्कुरा दी। सफर अच्छा कट जाएगा।
मैं आपको किस नाम से मुखातब करूं? मैंने हुस्न की सरकशी को किन अखियों से देखते हुए पूछा। अमृता, सुंदर नाम है, बिल्कुल आप ही की तरह, मैं रवानी में कह गया। उसने बुरा नहीं मनाया, मुस्कुराने लगी। हमारे दरमियान अजनबियत का एहसास खत्म होने लगा। मैंने उसे टटोलने की खातिर दरियाफ्त किया। आप लंदन किसके पास गई थी? था एक काम, उसने साफ गोई से जवाब दिया। आपको तफसील नहीं बता सकती। आपके पिताजी क्या करते हैं? लंबा सफर है, उसने सरगोशी की। आप इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ पूछ लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा। जहाज का अमला ड्रिंक्स की ट्राली लिए आ गया तो मुसाफिर खाने पीने में मसरूफ हो गए। हमारे दरमियान इधर उधर की बातें होती रहीं। अमृता बहुत जल्द मुझसे घुल मिल गई। मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मनाएंगे? उसने जूस का एक घोंट लेते हुए दबी जुबान में कहा। आप एक नहीं 10 पूछ सकती हैं, मैंने फ्याजी का सबूत दिया। भगवान न करे आपको टांगों का कोई रोग तो नहीं? ये अंदाजा आपने कैसे लगाया? मैंने तअज्जुब से पूछा। आपके साथ ये लाठी देखकर। अमृता ने लाठी पर नजर डालते हुए सवाल किया। ये मेरे जहन में सैयद मजदूब उबर आया। ये मेरे एक दोस्त की निशानी है, मैं उसे कभी खुद से जुदा नहीं करता। दोस्त और लाठी, बड़ी हैरत की बात है। उसने बड़ा लतीफ तंज किया। हर शख्स से फूल मिलने की तवक्का भी नहीं की जा सकती। मैंने मैनी खेज अंदाज इख्तियार किया। क्यों नहीं की जा सकती? वो बड़े कातलाना लहजे में बोली। तन उजला हो, मन में मैल ना हो, बोल सच्चे हो तो मिनश की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। आजकल ऐसे दिलों को तलाश करने की खातिर पूरी दुनिया को घंगालना पड़ेगा। मैंने दीदा दानस्ता अफसुर्दगी का इजहार किया। अपने अपने नसीब की बात है। आप मुझे अंदर से दुखी नजर आते हैं। वो खाने से हाथ रोककर मुझे देखने लगी। उसकी गजाली आंखों में मस्तियां नाच रही थीं। होंठों की मुस्कान कभी कभी धोखा भी दे जाती है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। दिल का भेद हर कोई नहीं जान सकता। आपका कोई अपना बिछड़ गया है शायद। अमृता ने अपनाइयत से पूछा। कौन था? आप जल पानी करती रहें, मैंने उसे उकसाने को कहा। मैं अपनी कथा सुनाने बैठ गया तो आप बोर हो जाएंगी। दूसरों के दुख कौन बांटता है? एक बात कहूं? कहिए, मैंने सर्द आह भरी। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। वो संभल कर बैठ गई। टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोली। जिंदा रहने के कारण बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी खटनाइयां भोगनी पड़ती हैं। लोहा जंग पकड़ ले तो किसी के काम का नहीं रहता। यही हाल मिनश का है। कोई रोग लगे और उसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो वो अवगढ़ बन जाता है। जीवन खटार को घसीटने के लिए जोर तो लगाना पड़ता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने से काम नहीं चलता। एक रास्ता खोटा हो जाए तो दूसरा खोजना पड़ता है। जीवन परमात्मा की सबसे सुंदर देन है। उसकी सुंदरता को बढ़ाने की खातिर कांटों की नहीं, महकते फूलों की जरूरत होती है। जो रूठ जाए उसे मनाया जा सकता है, जो बिछड़ जाए उसे भूलना पड़ता है। यही दुनिया की रीत है। जो इस रीत को तोड़ दे वो भीड़ से अलग हो जाता है, अकेला भटकता रहता है, अपनी मंजिल से दूर होता चला जाता है। वो बड़ी रवानी से जिंदगी का फलसफा बयान कर रही थी। नदी के दो पाड़ की मसाले ले ले, वो आपस में कभी नहीं मिलते, लेकिन पानी का बहाव जारी रहता है। बहाव थमने लगे तो जीवन नया डगमगाने लगती है। उसे किनारा नहीं मिल पाता, कहीं रास्ते में ठप हो जाती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य को अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है। वह निराश हो जाए तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। कहानी को आगे बढ़ाने की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। वो सांस लेने को रुकी। आपने कहां से सीख ली ये बातें? मैं सवाल कर बैठा। संसार की भेड़ चाल ने सिखा दी। उसके गुदाज होंठों पर एक उदास तबस्सुम मचल कर रह गया। जो चीजें ऊपर से सुंदर नजर आए, कोमल दिखाई दे, अंदर से भी उनका इतना ही सुंदर होना जरूरी तो नहीं। कुएं की गहराई का अंदाजा लगाने के कारण
نیچے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ رسموں کو نبھانے کے لیے سماج میں پگ کی جھوٹی شان برقرار رکھنے کی خاطر چاندی پر سونے کا پانی چڑھانا پڑتا ہے۔ طمع کیے ہوئے زیوروں گہنوں سے کام چلانا پڑتا ہے۔ سرخ جورے میں لپٹی سہمی سمائی نئی نویلی دلہن کے ماتھے پر جلملاتے جگمگ کرتے ٹیکے کی باغیا میں کیا لکھا ہے یہ کون جان سکتا ہے؟ مت کیجئے ایسی باتیں۔ میں اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکا، اسے ٹوک کر بولا، کہیں آپ کو میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ بولتے بولتے رکی تو مجھے یوں لگا جیسے فضا کی ساری نغمگی ختم ہو گئی ہو، سارے سازوں کی آواز ایک ساتھ خاموش ہو گئی ہو۔ میری بات سن کر اس کی مخمور نگاہوں میں جگنو چمکنے لگے، ستارے جھلملانے لگے۔ اس کی سنجیدگی میں مسرتوں کے رنگ گھلے تو وہ اور زیادہ حسین بن گئی۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جم کی رہ گئیں۔ اس کی شاید خوشی تھی کہ وہ میرا دکھ بانٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے سینے میں ارمان ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ کرب و جوار کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے مسافروں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، وہ میری قسمت پر رچ کر رہے تھے۔ میرا سینہ فخر سے اور تن گیا۔ میں حسن و جمال کے اس شاہکار کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک جملے سے خاموش ہو کر کسی حسین مجسمے کی طرح اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس کے معصوم بیر بےہوٹی کی مانند جو ذرا سی آہٹ پا کر اپنے سرخ مخملی جسم کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ہر خطرے سے بے نیاز سمجھنے لگتی ہے، امریتا بھی میرے جذبات میں اٹھنے والی تغیانی سے بے خبر تھی۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.